ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਰਵੀ ਸੰਗਰਾਹੁਰ। ਯੂਕਰੇਨ ਔਰ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਨਸ਼ਨ ਔਰ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ। ਜਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਹਰਸ਼ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ। ਹਰਸ਼ ਕੀਵ ਔਰ ਖਰਕੀਵ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 500-600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰਸ਼ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਹਰਸ਼ ਦਾ ਘਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ ਹੈ। ਹਰਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਹਰਸ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੀਵ ਜਾਂ ਖਰਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਆਉਣਸਾਰ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਬੀਤੀ, ਇਹ ਹਰਸ਼ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਹਰਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਸ਼ ਔਰ ਹਰਸ਼ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀਵ ਜਾਂ ਖਰਕੀਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੀਵ ਤੇ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ੇ ਵਰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਥੋੜਾ ਸਾइड ਤੇ ਸੀ हर्ष क्या हाल चाल है? तो सब नॉर्मल है अभी नॉर्मल है? हाँ जी सब नॉर्मल। वहाँ क्या हाल थे? वहाँ डरे हुए थे। कितना? बस ये था कि घर वापस चले जाएं जैसे शुरुआत से क्योंकि जब हम बात कर रहे थे पहले तो आपने ऑफ कैमरा बोला था कि हमला आपके उधर से शुरू हुआ। हाँ जी 24 को जो हमला था, जो हमारी सिटी थी और जो खारकीव और कीव सब में मतलब एक साथ सुबह बॉम्बिंग हुई थी, तो वहाँ से सब शुरू हुआ था जो भी था। और सुबह मतलब कोई ऐसी भनक भी नहीं थी कि आज ये सब होने वाला है, क्योंकि पहले इन्फॉर्मेशन आई थी कि 16 को शायद प्लान कर रहे हैं, लेकिन 16 तक सब सेफ था, 16 से 24 तक सब सेफ था। और 24 को जब हुआ तो सबको एक अचानक से सब कुछ हुआ, तो फिर मतलब एकदम कोई आइडिया नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं है। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਇਓ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਨੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ? कल एडवाइजरी आई थी एक इंडियन एम्बेसी की कि कितनी तारीख तक आई सी? कितनी तारीख? कल जो जो एम्बेसी की साइड से कि कीव में जो भी लोग फंसे हुए हैं वो जल्दी से जल्दी आज ही निकल जाएं। अगर ये एडवाइजरी इंडिया की गवर्नमेंट 20 तारीख को कर देती तो वहाँ आज इतने बच्चे फंसे ही ना होते। वो पहले अपनी अरेंजमेंट करके चलते सारे, तो इंडिया गवर्नमेंट से बहुत डिले हुआ इस सिचुएशन के लिए। उन्होंने पहले कोई ऐसी प्रॉपर एडवाइजरी नहीं दी। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਾਸਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? एडवाइजरीज पे तो अगर कुछ इंडिया गवर्नमेंट पहले ही कंफर्म कर देती तो पहले ही निकल जाते, लेकिन वो अनसर्टेन थी इंडियन गवर्नमेंट खुद कि वॉर होएगा या नहीं होएगा।
तो इसलिए जो हम थे कि हमने 10 डेट की जो हमने टिकट करा रखी थी, तो हम 10 तक सोच रहे थे कि निकल जाएंगे। हाँ जी। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਉੱਥੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ? रहे हम अपने फ्लैट में रहे थे, लेकिन जैसे ही सायरन्स बजते थे, बॉम्बिंग स्टार्ट होती थी, तो हम जब शेल्टर चले गए, सबको जो एडवाइजरी थी गवर्नमेंट की कि अगर कुछ भी सिचुएशन खराब हो तो शेल्टर से चले जाओ या फिर बेसमेंट्स में। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? दिन तो लगातार तो कंटिन्यूस तो रहे नहीं, क्योंकि हमारे वहाँ थोड़ा सिचुएशन इतनी भयानक नहीं थी, लेकिन ये ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? हाँ जी, क्लासेस कंटिन्यू रही। यूनिवर्सिटी वाले स्ट्रिक्ट हैं क्लासेस के लिए थोड़े, तो उसी वजह से जो थे हम वहाँ रह रहे थे, नहीं तो हम कभी क्या जाते। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ? हमने पहले ही स्टॉक रख रखा था कि अगर सिचुएशन ज्यादा खराब हुई तो पहले ही। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ? हम 4 लड़के रह रहे थे फ्लैट में। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ओडेसा। ओडेसा 'ਚ। हाँ जी। और इंडियन कितने के बच्चे होंगे उत्थे? इंडियन हमारी सिटी में 100,000 के आसपास होंगे। 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ? ਕੱਲ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी, कल शाम को 7 बजे हम घर पहुंचे। ਉੱਥੋਂ ਕਦ ਚੱਲੇ ਸੀ? वहाँ से हम 26 को सुबह 6-7 बजे के आसपास निकल चुके थे। तो 26 से लेके कल तक हमने सिर्फ ट्रैवल करा है। आराम नाल पहुंचे ਜਾਂ ਕੋਈ समस्या आई? समस्याएं तो आई हैं, पैदल भी चलना पड़ा है। और कितने किलोमीटर पैदल चले? हम 9-10 किलोमीटर पैदल चले हैं बॉर्डर के लिए। अरे सामान उठा के। कितने बच्चे सी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? कितने विद्यार्थी? हम 20 बच्चों का ग्रुप था हमारा, जिसमें 4 हम सबसे आगे आगे चल रहे थे और पीछे आ रहे थे अलग अलग टैक्सीज में लोग। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੋਂ? एम्बेसी को हमने पूछा कि जाएं या ना जाएं, तो कहते कि आप जैसे जैसे जा रहे हो अगर सेफ हो तो हमें बताते रहो, ताकि हम पीछे जो बच्चे आ रहे हैं उनको गाइड करते रहें। हमें उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਬਣਾ ਲਿਆ? हाँ जी, हाँ उन्होंने ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਸੇਫ ਲੰਘ ਗਏ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਐਮਬੈਸੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? जो हम रोमानिया पहुंच गए एयरपोर्ट पे, तो उसके बाद एम्बेसी ने हमें सब गाइड करा कि एयरपोर्ट की फ्लाइट टिकट्स कराई, एयरपोर्ट पे जो बॉर्डर्स तक एम्बेसी का कोई रोल नहीं रहा? नहीं, बॉर्डर्स तक कोई भी बॉर्डर देख लो आप उठा के, रोमानिया का बॉर्डर देख लो, पोलैंड का बॉर्डर देख लो, बच्चे वहां तक खुद आ रहे हैं अपनी बस सर्विस से, अपनी टैक्सीज से, जैसे भी हम खुद तक आ रहे हैं। उस वेले बस सर्विस चल रही सी ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ? हाँ जी, बस सर्विस भी चल रही थी और ट्रेन भी चल रही हैं। ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ 2-3 ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇੱਕ। ਔਰ ਉਧਰ ਪੋਲੈਂਡ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ? हाँ जी, ये सब बिल्कुल जो भी न्यूज़ आ रही है सब बिल्कुल सच है। बच्चों के साथ बिल्कुल सेम ऐसे ही बिहेव करा जा रहा है, और बच्चों से हमारी बात ही वो कहते हैं कि हमें डंडे तक पड़े हैं जो पुलिस वाले हैं वहाँ के, कि इतनी सारी भीड़ है एक तो वहाँ पर, और डिसिप्लिन तो मेंटेन करना फिर मुश्किल रहता है जहाँ भीड़ होती है। तो उस वजह से जो वो रेसिज्म भी चल रहा है वहाँ पर, तो इसके लिए बच्चों को कंट्रोल में रखने के लिए फायरिंग भी कर रहे हैं वो वहाँ के लोग जो हैं, और डंडे भी मार रहे हैं बच्चों को। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਔਕਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਔਕਵਰਡ ਹੋਇਆ? ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ? नहीं, जो हमारा बॉर्डर था वो सबसे सेफ बॉर्डर था, जिसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी गवर्नमेंट को। लेकिन जो दूसरे बॉर्डर्स थे जहाँ के लिए गवर्नमेंट बता रही थी कि वहाँ से जाएं आप, वहाँ से क्रॉस करें, वहाँ से आपको इंडियन एम्बेसी के लोग मिलेंगे, वहाँ पर ये सब सिचुएशंस भी हैं, और ये सब बच्चे ये सब बच्चे अपने आप को देख भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं ये सब अपने साथ होता हुआ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਸ਼ ਉੱਥੇ? मेरा 5th ईयर चल रहा है सर। 5th ईयर। हाँ जी। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫਿਰ? अब या तो अभी तो ऑनलाइन चल रही हैं क्लासेस, जब सिचुएशंस ठीक हो जाएंगे फिर ऑफलाइन भी शिफ्ट करेंगे, तो फिर वहाँ वापस भी जाना पड़ेगा। यूक्रेन जाओगे वापस? हाँ जी सर, जाना ही पड़ेगा जे हालात ठीक रहने। हाँ जी।
ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕੀਵ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਰਕੀਵ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਿਕਲ ਗਏ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਨੇ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? अभी यहाँ पास में गांव है एक, वहाँ के भी 2 लोग अभी खारकी में फंसे हुए हैं। तो उनके भी पेरेंट्स बताते हैं कि अभी उनको निकलने का कोई वो नहीं है, साधन नहीं है उनके पास, तो अभी वो शेल्टर में ही रह रहे हैं। और शेल्टर में और जो बंकर्स हैं बनाए हुए हैं वहाँ पे रह रहे हैं, और उनको खाने वगैरह की भी दिक्कत हो रही है। और ठंड तो है ही, क्योंकि यहाँ का तो फिर भी टेम्परेचर नॉर्मल है, लेकिन वहाँ पर माइनस में भी टेम्परेचर है, स्नोफॉल भी हो रही है बॉर्डर्स पे, तो उनको सब डिफिकल्टीज हो रही है। ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਲਗਭਗ ਆਉਣ ਲੱਗ ਹੀ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਜਦੋਂ ਹਰਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੱਦ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਸ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਹਰਸ਼ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ? नहीं, ये माना नहीं। हाँ, ये कहता है कि मम्मी यहाँ सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है यहाँ। ये भी आप होना चिंता- चाहिए। हाँ जी, आप चिंता मत करो कि हाँ। यहाँ सब ठीक है। हाँ। ये हमें फोन करके चुप करा देता था ऐसे। अच्छा, हाँ जी। हर्ष वापस नहीं आना चाहते थे? जो हमारी यूनिवर्सिटी कह रही थी तो हमें तो वही फॉलो करना पड़ता, नहीं तो फिर एक्सपायर होने के चांस थे, फिर 5 साल वेस्ट होते हैं, दोबारा से रिपीट करना पड़ता या तो ईयर। तो बस यही सब था, तो इस वजह से घर वालों को समझाना पड़ता था कि कुछ नहीं है यहाँ पे, नॉर्मल है। लेकिन घर वाले आपको समझा रहे थे वो सही था? अभी लगता है कि घर वाले समझा रहे थे वो सही था? हाँ, क्योंकि उस टाइम जब यहाँ की न्यूज़ थी ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब दिखा रहे थे, उतनी सिचुएशन एडवांस चल रही थी न्यूज़। हाँ जी, एडवांस चल रही थी। और हमारी सिटी में इतना था नहीं, क्योंकि वहाँ उस टाइम दिखा रहे थे कि बॉर्डर्स पे वो सब हो रहा है। हाँ। लेकिन सिटीज़ में कुछ था नहीं उस टाइम, तो इसलिए समझाना पड़ता था घर वालों को कि हम सब ये नॉर्मल है अभी। होने लग रहा है कि पहला निकल आए, ठीक है, फंस सकते थे। अब तो लग रहा है, क्योंकि जो मतलब उस टाइम डिसीजन नहीं लेते तो फिर वहीं फंसे रह जाते, तो फिर क्या पता क्या टाइम होता हमारे ऊपर भी वहाँ का। आंटी हुण भेजोगे दोबारा? मन तो नहीं करता, आगे टाइम बताएगा। हुण दिल नहीं करता? मन नहीं करता भेजने को। ये भी टेंशन है कि बच्चे की पढ़ाई खराब हो हाँ गई? जी, ये भी टेंशन है कि बच्चे के 5 साल पूरे हो गए, 1 साल रह गया, क्या करेंगे। देखें भी आगे कैसी सिचुएशन है वहाँ। किन्ने सुपने सोचे सी कि MBBS करके आएगा हर्ष, इत्थे आके सेट हो जाएगा ना सारा कुछ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ है कि सारा कुछ खत्म हो गया नहीं, ਜਾਂ कोई उम्मीद बची है? नहीं, अभी भगवान पे भरोसा है, वो सब ठीक करते हैं। हर्ष जो सोचा करना, अब देखते हैं अगर या तो यूनिवर्सिटी शिफ्ट होएंगे हमारी, कि जो उस यूनिवर्सिटी में हम हैं उससे दूसरी यूनिवर्सिटी में हमारा जो लास्ट का 1 ईयर रह रहा है वो सब दूसरी यूनिवर्सिटी से करा लें, अगर सब नॉर्मल नहीं होता, या फिर अगर नॉर्मल होता है तो वहीं से हम रिपीट करें, मतलब कंटिन्यू करें। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪ ਗਲਤ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਧਰ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ MBBS ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। कुछ लीडर्स दे बयान आ रहे हैं। अगर कोई यहाँ अफोर्ड कर ही नहीं पाएगा 1 करोड़ पर मतलब जो भी उनकी डिग्री का खर्चा है, और यहाँ डोनेशंस वगैरह भी हैं, तो फिर कहाँ से बच्चे करेंगे? फिर जिनको अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं तो उनको तो वहीं का ऑप्शन रह जाएगा ना। और यहाँ पर कंपटीशन इतना है और सीट्स तो मतलब बहुत ही कम है, तो फिर बच्चों के लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर वहाँ का ही ऑप्शन रहता है बच्चों के लिए तो जाने का। कितना डिफरेंस है यहाँ का और वहाँ का? बिल्कुल आप ये लगा लो, यहाँ से वहाँ का डबल है, जितनी वहाँ की फीस है उतना मतलब यहाँ उससे डबल खर्चा है यहाँ, यानी 50 लाख से एक करोड़। यहाँ 1 करोड़ यहाँ फीस है ना, तो वहाँ 50 लाख में आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, खर्चा वगैरह सब कुछ, एकोमोडेशन का सब कुछ का। इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप तो सस्ती पढ़ाई करने जाते हो, यहाँ करो महंगी पढ़ाई। उनको तो यही है ना कि सब अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए तो, पर सब ऐसा नहीं है ना कि सब मिडिल क्लास लोग भी हैं, उनको भी देखना पड़ता है, जिनके घर में और भी बच्चे हैं उनको भी देखना पड़ता है। आंटी सौखा तो रेंज नहीं होया होएगा, जे 25 लाख 50 लाख भी लगा, सौखा रेंज तो नहीं होया होएगा, बहुत सारी अपनी मेहनत लगती है, तुसी जो इन्वेस्ट किया अपने बच्चों के लिए ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਲਾਇਆ। हाँ जी, वो जो ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ?
दिखता तो बहुत है यहाँ, पर जब इसका सपना था वो तो पूरा करना ही था हमें। जब ये कहता था मम्मी हम पापा मुझे एमबीबीएस करनी है, मुझे एमबीबीएस करनी है, फिर वो तो करवानी थी इसके पास से। अब आप सर ये देखो कि जहाँ जितनी कम सीट्स है ना उतने डॉक्टर्स नहीं है यहाँ पे, तो डॉक्टर्स कहाँ से आ रहे हैं? बाहर से ही जो करके आ रहे हैं वही यहाँ डॉक्टर से कर रहे हैं, वही यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं सबकी। तो अगर वहाँ से नहीं करके आएंगे तो यहाँ डॉक्टर्स की कमी हो जाएगी फिर तो फिर वहाँ उसके लिए क्या कर पा रहे हैं? कुछ भी नहीं कर पा रहे, सीट्स तो हो ही नहीं रही इनसे। सरकार प्रेफर नहीं कर दी क्या ये चीज़ां, मतलब जो बच्चे आ रहे हैं करना नहीं चाहती जहाँ सरकार, जो बाहर से पढ़ के आ रहे हैं वो टेस्ट क्लियर कर रहे हैं यहाँ आके, तभी उनको एमबीबीएस के लिए मतलब आगे प्रैक्टिस के लिए उनको अलाउड होता है। उसके बिना तो अलाउड भी नहीं करते ना। तो बच्चे क्लियर करते हैं आके तभी तो करते हैं प्रैक्टिस कि हम कर सकते हैं, हम एज ए डॉक्टर हैं, हम प्रैक्टिस कर पाएंगे। वो प्रूव करते हैं ना अपने आप को यहाँ के, तभी तो यहाँ के वो डॉक्टर्स कहलाते हैं। फिर स्टडीज तो सब जगह सेम है, स्टडीज वहाँ भी सेम है, स्टडीज यहाँ भी सेम है, बस एक खर्चा घट है, इस करके उधर ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ मतलब ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਧਰਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। बुक्स यहाँ भी वही पढ़ा रहे हैं जो वहाँ पढ़ा रहे हैं। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। और बहुत सारे बच्चे हाले भी फंसे पे ने। फ्यूचर च की होना है हाले किसी को कुछ नहीं पता। पहले तो सरकार से यही दरखास्त है कि जितनी जल्दी हो सके सभी को इवैक्यूएट करे वहाँ से। बॉर्डर्स पे अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जाएं इंडियंस के लिए, और फ्लाइट्स वगैरह अरेंज करें। अगर बच्चे वहाँ शेल्टर में वेट कर रहे हैं तो उन्हें वेट ना करना पड़े, जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करें साथ के साथ उन्हें फ्लाइट में बिठाएं और इंडिया वापस लेके आए। बोल रहे हैं कि साड़ी मतलब वो बच्चे अपने आप ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਹਾਲਾਂਕਿ 4 ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ मतलब ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪ ਔਖੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। मेन प्रॉब्लम है वो यूक्रेन के बॉर्डर्स तक पहुंचना ही है, और वो अगर बच्चों को वही खुद करनी पड़ रही है, सिर्फ फ्लाइट से अरेंज करा रहे हैं ना गवर्नमेंट वाले, लेकिन बच्चे बॉर्डर तक तो सब खुद आ रहे हैं। तो वो ही अगर क्लियर हो बच्चों के लिए कि रास्ता सही, प्रॉब्लम तो उन्नी जगह दे ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, उन एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। हाँ जी, अब बॉर्डर पे बैठ के वो क्या करेंगे मंत्री? कुछ भी नहीं कर सकते वो तो। बच्चों को पूछो ना जो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, जो बसेस में अपने खुद अरेंज कर रहे हैं, कि कितनी डिफिकल्टीज आ रही है उन्हें। सरकार आपको क्या लगता है खाना पूर्ति कर रही है सरकार या कुछ? सरकार जितना कर रही है चलो उतना तो कर रही है। एक तो गलती हुई सरकार से कि उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया, एडवाइजरी क्यों नहीं जारी की? जब अमेरिका को पता चल गया था, अमेरिका ने अभी भी अपने जो रूस में बैठे हुए उनके नागरिक हैं उनको बोला कि आप तो रूस छोड़ के आप वापिस आओ, अमेरिका कुछ हो रहा है, और भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये तो गलती हुई सरकार ये गलती है। और बस हर बार ये कह रहे हैं कि हम आपकी मिनिस्ट्री से बात कर रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री से, कि आपकी क्लासेस ऑनलाइन कराएं ताकि आपको पढ़ाई की कोई दिक्कत ना हो, कि पढ़ाई का अपना सोचना पड़े। लेकिन कब तक बात ही नहीं, अब बात हो रही है जाके कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही है आपकी। अगर पहले ही बात हो जाती सारी तो बच्चे पहले ही आ जाते ना। और इन्होंने भेजी 3 फ्लाइट्स, आप ये लगा लो 3 फ्लाइट्स मतलब 600 बच्चे, और वहाँ कितने बच्चे थे फंसे? 15 से 20 हजार। हाँ जी बताइए, अप्रोक्सीमेटली आए 3 फ्लाइट्स करा दी इन्होंने, और उसको कह रहे हैं कि हमने ये करा दी थी फ्लाइट्स। क्यों नहीं आए बच्चे तब? हर्ष, खर्चा कितना आया आपका इस सब में? कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि 3 गुना 4 गुना ज्यादा टिकट खरीदनी पड़ रही थी उनको, बहुत सारा। आपका खर्चा कुछ ऐसा आया? सर अभी की फ्लाइट की टिकट तो गवर्नमेंट की थी जो भी था, तो उसके लिए तो चलो शुक्र है गवर्नमेंट ने अब नहीं कहा कि भाई पैसे दो फ्लाइट के भी। लेकिन एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए हमारा 20,000 के अप्रोक्स खर्चा है। किस बॉर्डर के थ्रू आए थे आप? हम मोल्दोवा और रोमानिया कंट्री, 2 बॉर्डर क्रॉस। मोल्दोवा से रोमानिया? हाँ जी। और रोमानिया से इंडिया? हाँ जी। ठीक है। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, 4 ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ ਭੇਜੇ ਆ, ਪਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ। ਪਰ ਐਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰਸ਼ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜੋ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਭੁਗਤਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵੇ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਵੀ ਸੰਗਰਾਹੁਰ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ ਹਰਿਆਣਾ।